Good morning, my dear children. So, how are you all? Today, again, I'm here with a topic HCF and LCM, the same topic I discussed in the previous video. पहले वाले वीडियो में जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ. ठीक है, कभी ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके, तो कंसेप्ट आपका इस चीज़ का भी क्लियर होना चाहिए. देखिए, जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, x and y are prime numbers, then find LCM and HCF of a and b. It is one of the important questions. Okay. एंड नाउ लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर्स का HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना बताया था. ओके अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास लिटरल्स हैं. लिटरल्स मीन्स वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स का भी सेम पैटर्न ही लगेगा. वी पीपल हैव टू ऑब्जर्व द पावर्स, मीन्स एक्सपोनेंसी ऑब्जर्व करनी है. देखिए LCM क्या बोला था मैंने, लीस्ट है तो उसका अपोजिट ग्रेटेस्ट पावर जो होगी वो ली जाएगी. ओके x इसमें भी है, x इसमें भी है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो वी विल टेक द लार्जेस्ट पावर. सो इट विल बी रिटन एज x raised to the power 3. Okay, and here also y, and y is the part of b also. So the power of y is square, and here the power of y is y cube. So we will take the greatest power, the y cube, that is we will consider y cube. Okay, so this is the LCM, and this is the final answer for LCM. Nothing else to be done here because no extra variable or number is given. Okay, now come to the HCF. HCF is also to be taken as like common only, and the least power, highest, and opposite is least. So here is the least power 1, x raised to the power 1 means we will take x, and the least power of y is y square. So this is HCF. This is quite finished. Okay, nothing else to be done here. Now come to the next example. It is written here, find the LCM of x square minus 4. This is 4 written. Okay, and the next is x raised to the power 4 minus 16. So first of all, what you will do, you people have to find out the factors as you must have done in class 9. X square minus 4 can be written as x square minus 2 square, and you must have learned the identity a square minus b square. A minus b, a plus b, right? Come to this next one, x raised to the power 4 minus 16. First of all, write it in the square form. So it can be written as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x raised to the power 4 को हम लिख सकते हैं x square whole square, and 16 को हम लिख सकते हैं 4 का square. Okay, again it will be an identity of a square minus b square, right? A is x square and b is 4. So a minus b, a plus b, x square minus 4, x square plus 4. See, x square minus 4 can further be factorized. Okay, it can be written as x minus 2, x plus 2, x square plus 4. Now, I'm not explaining you the identities here because you people must have done. If you're in 10th standard, इसका मतलब है आप 9th में ये सारी identities करके आए हैं. इन केस आपको नहीं आती है ये आइडेंटिटी, तो यू मस्ट गो एंड रिवाइज द आइडेंटिटीज. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी आइडेंटिटी. ओके, सो जिन्होंने ये आइडेंटिटीज़ की हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं. दिस इज ऑल्सो a square minus b square form. So it can be further written as x minus 2, x plus 2. Okay, so these are the factors of these two given things. So now come to the LCM part. LCM में देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर x minus 2 है, इसमें भी है x minus 2. ठीक है, तो x minus 2 ब्रैकेट पे पावर दोनों पे ही 1 है, इसमें भी और इसमें भी, तो हम x minus 2 ले लेंगे. ओके, x plus 2 इसमें भी है और इसमें भी है और दोनों पे पावर 1 है.
ओके, ज़्यादा वाली ली जाती है वैसे तो इसमें कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि सेम पावर है, तो हमने वही लिख लिया। ठीक है, अब बचता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मैंने आपको एलसीएम में बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर बचती है तो दैट इज़ ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एलसीएम। ओके, सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी हमारा लिखा जाएगा। सो दिस इज़ द एलसीएम। अब इसको आप चाहो तो वापस कॉम्पैक्ट कर सकते हो, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर उन दोनों को मिलाकर आपका अल्टीमेटली एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16 आ जाएगा। यू कैन डू अगेन इसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, नहीं भी ला रहे कोई बात नहीं, इट इज़ क्वाइट राइट आंसर। नाउ HCF में वी विल हैव टू टेक ओनली कॉमन थिंग्स। x माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वी विल टेक x माइनस 2 एंड x प्लस 2 भी दोनों में है, तो x प्लस 2 वी विल टेक। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट में नहीं प्रेजेंट है। हमें HCF में सिर्फ वही चीज़ें लेनी होती हैं जो सब में दी हुई होती है। ओके, सब में कॉमन होती हैं, तो इसको भी वापस आप उसी फॉर्म में कॉम्पैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is A is equals to P square Q cube R raised to the power n, and B is equals to P cube Q raised to the power m R square, where P, Q, R are prime numbers. If LCM of A and B is this, then find the value of 3n minus 2m. Now listen, LCM of A and B is already given. So we have to find out the values of n and m. Okay, see, it is written given A, whatever it is given, P square Q cube R raised to the power n. Here P cube Q raised to the power m R square. See, LCM is given, and in LCM I told you that the highest power have to be considered. Okay, greatest power, we will take greatest power. So P square is here and P cube is here, so we have written P cube as a LCM. Now come to the Q part. It is Q raised to the power 3 and it is Q raised to the power m. But in LCM it is Q raised to the power 4. So it is obvious the highest power is 4. So highest power will come this side and m we get 4. Okay. Now R raised to the power n and here R raised to the power square, and in LCM we have got R cube, which implies that the greatest power is 3. So here n will be 3. So we get the value of m and n. Now put this value in the given equation. 3n means 3 into 3 minus 2m means 2 into 4. So this is 9 minus 8 and it is 1. So answer is 1. So this is also very a simple question and very important question. एक बार और देख लीजिए। A हमें दिया हुआ था P square Q cube R raised to the power n. Okay, similarly P cube Q raised to the power m R square. LCM भी दिया हुआ है। LCM में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो हाईएस्ट पावर होती है वही ली जाती है। P का तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, हाईएस्ट पावर 3 है, ले ली। बट Q में यहाँ 3 दिया है, यहाँ m दिया है पावर में, तो यहाँ Q रेज़ टू द पावर 4 आया है। इट मीन्स हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, 4 होगा। तो फिर m की जगह 4 आ गया। ओके, r की पावर यहाँ पर n है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो ये क्या इसमें एलसीएम में लिखा हुआ है r इज 3, r रेज़ टू द पावर 3, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर यही रही होगी क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, तो n इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके, सो m की वैल्यू 4 मिल गई, n की वैल्यू 3 मिल गई, एंड वी पुट दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन एंड आंसर इज 1। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए, इस तरह से आपके HCF और LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ होगा। सो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, because you people are not sure, nobody is sure actually what would be the part of the question paper, but try to decode the questions कि इसमें हमें करना क्या है। आप सारी बुक्स पढ़ोगे, उसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाए कौन सा नहीं आ जाए आप श्योर नहीं हो,
बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे आपको LCF LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. तो प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स लाइक दिस. ओके, मैं आपके पास आपके सामने आती रहूँगी इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेके और आगे के और टॉपिक्स लेके. तब तक आप प्रैक्टिस करिए एंड इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. So till then, bye bye, take care, and do more and more practice.